کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. آدمی کہتا تھا یہ اچھے آدمی نہیں ہے, اچھے نہیں ہے, میں جو دل کو اچھا لگتا ہے اس کو ضرور ملنے جاتا ہوں. ان کو پہلی دفعہ ملنے آیا, پھر دوسری بار. اب نہیں سر, لوگ تو کہہ رہے ہیں اچھے آدمی نہیں, آپ ملنے آ گئے ہیں. مرزا صاحب قادیانی ہے؟ نہیں الحمدللہ مغل ہے. اچھا نہیں تو وہ تو کہتے ہیں مرزا قادیانی, مرزا انجینئر محمد علی مرزا کو کہتے ہیں قادیانی. کی کیا بات ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. میرا بچہ نا ساؤتھ افریقہ کا نام ملاوی ملک ہے, وہ بچہ بڑا انہوں کا اچھا کرتا ہے, کہنا میرے پیروں کی طرح میرے پیر. ہر بات قرآن و حدیث سے کرنی ہے, اور کوئی بات کہانی نہیں سنانی جو بیسیکلی جو بچپن سنتے آ رہے تھے, کہانی نہیں تھی. لیکن جب وہ ساری جب حدیث اور قرآن کی باتیں سنی ہیں سب کو, وہ ایک 360 ہوتا ہے, ٹوٹلی چینج ہے. قرآن حدیث کی کتابیں موجود ہونے کے باوجود ان بابوں کو ضرورت ہی نہیں تھی اپنی کتابیں لکھتے. بد اخلاق بھی ہے, علماء اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں نا, آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی جو یہ بد اخلاقی لوگوں کو نظر آتی ہے, مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے. آسانی سے سمجھ گئے تو مشکل تھا, ٹھیک تھا, کرنی پڑی. چلو شکر ہے, مان گئے یار, یہ تھوڑی بات ہے. متاثر تھے انجینئر صاحب سے؟ وہ کیوں متاثر تھے؟ علماء کو نہیں سنتے, علماء تو منع کرتے ہیں متاثر نہیں ہونا. یہ علماء اللہ کا تعارف نہیں کرواتے. وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بنایا ہوا ہے ایک بوڑھی ماں ٹائپ, دادی نانی, جو جی بہت رحیم و کریم ہے. جی اللہ ایسا نہیں ہے. کیا ملا تھا تعارف, کیا تعارف, کیا سنا تھا کہ ان قریب یہ نبوت کا دعویٰ کریں. اللہ اکبر. ان کی صرف زیارت کے لیے آیا تھا. یہ جب سے ان کو سنا ہے نا, تو میں نے پہلی نشست کے اندر ہی ان کو سمجھ لیا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے. کوسچن یہ 2015 میں وہ اتنے فیمس بھی نہیں تھے, لوگ اس طرح جانتے بھی نہیں تھے. کیا نوبت آئی سننے کی, کیسے پتا چلا کہ یار یہ بندہ بول رہا ہے؟ میں یوٹیوب یوز کر رہا تھا, سڈنلی علی بھائی کی ویڈیو سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, وہ تو پیسے کھانے میں لگے ہوئے ہیں جناب, چندے شندے دے پیسے بٹورو بس. بابے شاہ کوئی نہیں, اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا غصہ آیا, تو پھر میں نے جب سنا ان کو مجلس 100 میں نے سنی. آپ کیا کہتے تھے بابے شاہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے, حال میں آئے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. تو وعلیکم السلام سر, کیا نام؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے سر؟ میرا نام پرویز ہے, ضلع منصیرہ سے ہے. میرے ساتھ ایک مانسہرے سے آئے ہیں؟ مانسیرہ سے. کیا کرنے آئے تھے؟ ہم انجینئر صاحب کو ملنے آئے تھے. مل لیا؟ ہاں. کیسا پایا انجینئر صاحب کو؟ بہت اچھا. ہم نے تو اس سے پہلے ان کو فرسٹ ٹائم آئے. اچھا, اس سے پہلے ان سے اپنی آنکھوں دیکھا, آج حال بیان کریں نا. حال میں جب آپ آئے, لوگوں کو دیکھا, انجینئر صاحب کو دیکھا, لوگ تو کہتے ہیں بندے بھی اپنے ہوتے ہیں, بد اخلاق بھی ہے, علماء اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں نا, آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی جو یہ بد اخلاقی لوگوں کو نظر آتی ہے, مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے. اسلام میں جب اسلامی جذبہ ہوتا ہے نا, تو اس کو ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ جو بونگیاں مارتے ہیں, ڈنڈیاں مارتے ہیں دین میں, جیسے دودھ میں پانی ملانا اور اس کو بیچ کر فخر کرنا, اور اپنی کتابوں کو اس کا دفاع کرنا, بابوں کا دفاع کرنا, اور دین کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دینا, اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ہے سامنے لے کے نہیں آنا, اور ممبروں پر بھی امام ابو حنیفہ اور بابوں کی باتیں کرنا بالکل غلط تھا. اور ان کو چھوڑ دیا. اب میں نے تو سب سے پہلے تقلید کو ختم کیا ہے. جو 4 اماموں کی تقلید ہے, انہوں نے مسئلے ڈالے ہوئے تھے. ان سے تو بہتر شیعہ ہیں جنہوں نے مسئلہ بھی نہیں ڈالا مسجد حرم میں. تو انہوں نے 4 مسئلے ڈالے ہوئے تھے, اور 4 مذموم قسمیں کھاتے تھے لوگ, ہمارے آبا و اجداد بھی, اور غلط طریقے سے ساری زندگی گزارتے تھے. پھر بھی ہم بھی اور لوگ بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد بہت اچھے تھے. اگر آج ہم ان کی بات کرتے ہیں, کیا آج ہم آبا و اجداد کی بات کرتے ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی, یا ان کی
ज़माने में इतनी तालीम नहीं थी, तो फिर भी कहते हैं क्या हमारे बाप दादा काफिर थे, वो खुद ही कहते हैं, हम उनको नहीं कहते, तो खुद ही आपने भाई माशाल्लाह मैं इंजीनियर को 2 हाथों को सैल्यूट करता हूँ। माशाल्लाह। चले अंदर गए थे, पिक्चर बनवाए हैं, मिल लिया जी, मिल के आए अंदर से? मिल के आए। अच्छा, जी। पिक्चर बनवाई उन्होंने, तस्वीर बनाई है। ठीक है। हाँ। क्या लगता है किसी बड़े आलिम दीन को मिलना और कोई है बड़ा आलिम दीन को मिलना? इसके अलावा हमारा तो और कोई यानी कि सोच ही नहीं। सोच ही नहीं। या पीछे जाएं तो चंदा शंदा भी दिया है कोई या नहीं दिया? इसाक साहब को फॉलो करते हैं या इंजीनियर वो चंदा शंदा भी दिया है कोई नहीं दिया? इसको? अंदर नहीं, मुट्ठी छुट्टी गर्म की भी हो, कोई चक्कर नहीं। मुट्ठी वाला तो पहले ही हमारा जहन ही नहीं बना हुआ, ये उन्होंने हमारे जहन से चीज़ें ही निकाल दी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा अब्दुल कय्यूम। मिर्ज़ा साहब किधर से हैं? इधर जेलम सिटी से ही। अच्छा, मिर्ज़ा साहब कादियानी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुग़ल है। अच्छा, नहीं तो वो तो कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी, मिर्ज़ा जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहते हैं कादियानी। उनकी क्या बात है, वो कह सकते हैं। अच्छा जी, मैं मजाक किया जी, है, पता हमें भी पता है। ये सिर्फ उन लोगों को जो सिर्फ मिर्ज़ा देख के कहते हैं कादियानी है। अच्छा, ये बताएं आपको इनका तारुफ कब हुआ? मुझे तो तारफ इनका बहुत पुराने 3-4 साल से इधर आने की कोशिश कर रहा था, जेलम से नहीं आ सके? जेल से नहीं आया। हमारे शाद मिर्ज़ा साहब मेरे दोस्त हैं बचपन के। अच्छा। वो मुझे दावत देते रहे। मैं कहा यार घर में बैठ के सुन लेते हैं, तो लेकिन नहीं, दिल में अब चाहत ज़्यादा हुई है। अब टीवी पे इनके जो क्लिप्स हैं या पूरा दावत के प्रोग्राम, उसके अलावा कुछ देखने का मूड ही नहीं करता। बड़ा सा टीवी है घर में, इनकी लगा के सुनते। क्यों? दावत का काम है, ये अच्छी बात बताते हैं। पहले तो मैं जाके कब्रों पे लेट भी जाता था, दरबारों पे जाता था। मेरे बड़े भाई वालदा साहब ऐसे ही पीर को ऊपर बैठा दिया, खुद नीचे अल्लाह थे। ये बार पुरानी बात है। अब जब से इनको 3-4 साल से सुन, मैं अपने बच्चों को भी यही तालीम दी है कि हम किन गुनाहों में, किन चक्रों में पड़े रहे हैं। सही बात है। ये मतलब गुनाह कबीरा, ये अल्लाह को शरीक, इनको हम शरीक कर रहे हैं। सही बात है जी, ऐसे जी, बस अल्लाह ही है जो देते हैं। वो इनकी बातों से बहुत ज़्यादा खुल के बातें हैं ना, वजाहत से होती हैं, तो वो समझ आ गया कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हमें क्या होना चाहिए। बेशक हम सिर्फ मुसलमान हैं, बस। हम सिर्फ मुसलमान। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम अमीर फैसल है। अमीर फैसल भाई किधर से आए हैं? मैं लाहौर शादरा से हूँ। शादरा से हैं? माशाल्लाह। ये बताएं करने क्या है, पहले तो ये बताएं। बस ये मेरा बेटा है, ये 2.5-3 साल लगे हैं इसको मुझे ज़रा समझाने में। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा, माशाल्लाह। क्या समझाने में 2.5-3 साल लग गए? इनको पहले ज़रा मतलब मैं सुनता था ना आगे थोड़ा सा आगे जी। मैं बेसिकली तकरीबन 4-5 साल से इंजीनियर साहब को सुन रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो फिर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वाले साहब को बताया, वालदा को बताया, घर में सबको बताया, सिस्टर को बताया, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। आज अल्लाह का शुक्र है कि वाले साहब भी सुनते हैं, अमल भी करते हैं, सिस्टर भी सुनते हैं। अच्छा, और उनकी फैमिली में काफ़ी चेंजेस आई हैं इसकी वजह तो से। पहले वाले साहब पहले किस फिरके से, किस मसलक से तलक था? अच्छा, देवबंदी। आसानी से समझ गए तो मुश्किल था? ठीक था। मेहनत करनी पड़ी है। चलो शुक्र है, मान गए यार, ये थोड़ी बात है। ऐसा सच वो नहीं था कि जो एक रवायती होता है कि बहुत ही कट्टर वाला सीन नहीं था, उनके अंदर एक्सेप्टेंस थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ना इंजीनियर साहब को सुनने से पहले ना मैं एक टेंशन में रहता था कि जैसे कि कोई बरेलवी है, कोई मतलब हम वो मतलब क्या बोलते हैं, अहले हदीस है, शिया है, कोई भी मसलक तो है। मैंने रफ़ाए दैन से नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी। मैं अहले हदीस के पीछे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। तो मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे किताब, नमाज की किताब थी, मुझे नाम तो याद नहीं है, उसमें एक हदीस उन्होंने कहा कि इसको पढ़ो, तो मैंने जब देखा तो उसमें तो रफ़ाए दैन के साथ नमाज लिखी। ठीक है। उसी टाइम ही नमाज जो है ना रफ़ाए दैन से पढ़ना शुरू कर दिया। पहला क्लिक था इनका। तो मतलब मैं लोगों को पूछते भाई आप कौन हो, भाई मैं कहा भाई मैं मुसलमान हूँ। कहते मेरे तो तुसी भाभी लदीस होंगे। तो फिर मतलब कि फिर जिस टाइम भाई ये मेरा बेटा अमीर हमजा, तो ये क्योंकि ये तो एज ए स्टूडेंट इनको यूनिवर्सिटी होती है, तो शुरू में इन्होंने इनको इनका लेक्चर लगाया, तो मतलब मुझे बड़ा
बड़ा बुरा फील हुआ। मैं कहा यार ये तो गलत बात है। मुझे याद है डांट भी बड़ी इंजीनियर खाई साहब है। का एक डायलॉग था, झिड़कियाँ बड़ी वो खाई एक है। इन्होंने पहला स्लोगन जो पहली मजलिस 100 में दिया था कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और। तो सबसे बड़ा एतराज़ यही था कि दो खुदा इंजीनियर साहब ने हाँ बता हाँ दिए। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की बात है। मैं मुझे उस वक्त जवाब भी नहीं आता था कि मैं क्या जवाब दूँ, या कहीं सच में दो ना बना दिए हो खुदा। और वक्त के साथ साथ भी आहिस्ते से खुद भी सुना, आज अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें चले नॉर्मल हो माशाल्लाह शुक्र है। बात यह है कि इधर इतने ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं घर वालों को दावत दी, खासतौर पे वालिद साहब को, तो वो नहीं सुन रहे। ऐसे ही। तो ये तो बड़ी कामयाबी है कि आपके पापा आपके साथ आ अभी गए। तो और बहुत लोग हैं फैमिली में जिनको समझाना है। जी जी, लेकिन कम से कम बाप का जो ना वो रिश्ता सबसे पहला हाँ। जरूरी फर्क यही था। अच्छा जी, ये बताएं कि फर्स्ट टाइम आए आप? जी मैं फर्स्ट टाइम। आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? आज कैसा प्रोग्राम, कैसा आपने कैसा पाया इस बंदे को? मैं आपको सच बताऊं, मतलब मैं रात से जाग रहा हूँ। हाँ मैंने लोकल बस में सफ़र किया है ठीक है। और नींद भी नहीं आई उसमें, तो जिस उसमें कि हम जा रहे हैं। सोया नहीं उनसे मिलने की उसमें ना कि मतलब मैं इनको टीवी पे देखता था। मेरे घर में ना काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर मैं ना इनको देखता था, तो मोबाइल पे भी देखता था। तो मुझे एक ज़ाहिर है इनकी मैं वीडियोस या ना मैंने पूरे रोज़ों में काफ़ी ज़्यादा देखी हैं। आज कैसा पाया इनको मिल के, इनको देख के? मुझे तो पहले सही बताऊँ आपको, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अच्छा, मैं अच्छा। उनको लाइव देख रहा हूँ, और हम बहुत करीब बैठे हुए क्योंकि मैं तो इनके रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखता था ना। आप तो गए थे पिक्चर बनवा के आए? हाँ पिक्चर बनवा मिले हैं वो? मिले हैं। सलाम दुआ हुई? सलाम दुआ लिए अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से मिले हैं। और मैं तकरीबन मैं आगे बैठा हुआ था, हाँ। काफ़ी लोगों को नींद आ रही थी। याद था कि जो मुझे लेकर आए हैं भी इनको भी नींद के झटके आ रहे थे। बंदा थक जाता मुझे था। नींद का झटका नहीं आया एक दफ़ा भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है जी? अजहर इकबाल। अच्छा, सब किधर से आए हैं? मैं गुजरात के गांव परसवाल से आया हूँ। अच्छा, क्या करने आए थे? मैं इंजीनियर साहब से मिलने आया था। हो गई मुलाकात? हाँ फर्स्ट टाइम आया इधर? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। इनका तारुफ कैसे हुआ था आपको? हर आदमी कहता था ये अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे नहीं है। मैं जो दिल को अच्छा लगता है उसको ज़रूर मिलने जाता हूँ। इनको पहली दफ़ा मिलने आया, फिर दूसरी बार, अब नहीं तीसरी सर, लोग बार। तो कह रहे हैं अच्छे आदमी नहीं, आप मिलने आ गए हैं। वो गलत कहते हैं। वो क्यों, वो गलती क्यों कहते हैं? इस गले उनको पता नहीं है, वो दूसरे फिरकों में बटे हुए हैं, इसलिए ये अच्छे आदमी हैं। आप बहुत फिरकों में अच्छे। नहीं थे? नहीं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आप खुद को मुसलमान कहते थे? जी जी जी। ज़बरदस्त। अच्छा, इंजीनियर को सुनने के बाद आपको क्या लगा कि जैसे आप सोचते हैं इंजीनियर भी वैसे सोचता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अच्छे तबलीग करने वाले पहले आदमी मैं देखे हैं। चलें, वो जो बताते हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक सबूत के हिसाब से बताते हैं। चलें, ये- बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल हालिक है। अब्दुल खालिक। हाँ जी, खालिक साहब किधर से आए हैं? मैं लाला मूसा से आया हूँ। लालापुर सर, क्या करने आए थे? मैं कितनी बारी आना, अच्छा, आज भी आया। मेरा बच्चा एक ना साउथ अफ्रीका ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਾਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਇਹ ਨੇ। अच्छा। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ, ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। अच्छा, ठीक ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ होगा, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ठीक होगा, ठीक होगा, सही होगा, सही ये होगा। अच्छे ये काम अच्छे है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुआज गुल। मौस जी। मौस किधर से? टोबा टैक्सी। टोबा टेक सिंह जी। क्या करने आए हो? इधर ही आए हैं। सीधा आए हो? नहीं, कल रात को इस्लामाबाद आए थे, हाँ। तो सुबह फिर बल्कि फजर टाइम पहुंचे थे। फजर पढ़ के घंटा दो सोए, फिर इस्लामाबाद से इधर। इंजीनियर साहब को मिलने जी। तारुफ कैसे हुआ? यूट्यूब से। नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं, इतना ऐसा सच नेगेटिव नहीं, लेकिन हल्का सा था नेगेटिव फैक्टर। क्या सुना था? सुना नहीं, जब खुद देखा था ना तो वो एक थोड़ी सी ना कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी लगती थी, जिस तरह की बातें थी शुरू में। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी वो माइंडसेट उस तरह का नहीं था, लेकिन फिर जितना सुना तो समझ आ गई कि बंदा ना हक की बात कर रहा है। कैसे समझ आई? हर बात कुरान और हदीस से करनी है, और कोई बात कहानी नहीं सुनानी, जो बेसिकली जो बचपन से सुनते आ रहे थे ना, जबरदस्त, जबरदस्त। कहानी नहीं थी। वो जो भी बात करनी है उसका बताना है जी, यहाँ से ये बात कर रहा हूँ। हजम हो गई फिर आहिस्ता आहिस्ता हजम हुई?
जी आहिस्ता आहिस्ता दो, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। डोज जरा सख्त थी ना, हैवी डोज थी ना। वो अब एक चीज बचपन से आपके वो बिलीफ्स बना दिए जाए ना कि ये चीजें ऐसी हैं, और एक बंदा एक साथ आके वो सारे बिलीफ तोड़ देता है। वो होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे फिरकों में बिल्कुल ऐसे। हल्की फुल्की चीजें चेंज हैं, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने तो बिल्कुल ही चीजें आगे बता दी ना अच्छा, कि क्या लगता है इनको सुनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखा, और क्या लगता है यार ये लोग उलमा को सुन तो है नहीं रही सर, इंजीनियर के पीछे अब लोग यंग जनरेशन भी भाग रहे हैं, क्या वजह है? सर इंजीनियर साहब भी यही बात कहते हैं कि जब आपने करनी हो ना तबलीग किसी को तो उसे अल्लाह का तारुफ करवाएं। अल्लाह ये उलमा अल्लाह का तारुफ नहीं करवाते। वो इंजीनियर साहब कहते हैं कि इन्होंने अल्लाह को बनाया हुआ एक बूढ़ी माँ टाइप दादी नानी जो जी बहुत रहीमो करीम है जी, ये अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह रहीमो करीम उनके साथ है जो अल्लाह की प्यारी बेशक करते हैं। बेशक बेशक। तो सबसे पहले जी लोगों को अल्लाह का तारुफ होना चाहिए, और वो होना है कुरान से। वो होना है कुरान। अभी नमाज जो है उलमा ने नमाज को लोगों को ऐसे बना दिया है कि जी ये एक आपने ड्यूटी है, ये ऐसे, हालांकि नमाज हमारा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। और इन्होंने बता दिया कि आपने अगर नमाजें पढ़े तो किला फतह करने जा रहे हो, किला आपने फतह करना है, और हमारे डेली लाइफस्टाइल में ऐसे अंदर गए थे, पिक्चर बनवाए हैं? नहीं अभी बनवानी है। अच्छा हो गया। क्या नाम है भैया? हमजा। हमजा, माशाल्लाह। हमजा किधर से? बेसिकली तो सियालकोट से। सियालकोट तो वैसे ही हमारा हो गया है। वैसे होता है इंग्लैंड में। लास्ट ईयर में आया था यहाँ पे, तब तो मेरा अली भाई से कोई तारफ नहीं था। लेकिन इस साल में जब गया हूँ वापस जाकर मैंने वीडियो शुरू की देखनी इनकी। कैसे शुरू की? क्यों देखनी शुरू की? किसने कहा? बस मुतासिर हुआ ना मैं, क्योंकि कुछ लोग इनकी जब वीडियो देख रहा था लोग बहस कर रहे थे ऑनलाइन, ये फितने है तो इसको नहीं सुनना चाहिए। जब मैंने फिर कहा देखता हूँ, सुन के देखता हूँ क्या। जब मैंने सुनना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे इसका इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं इस तरह नहीं कुरान और हदीस से अली भाई सारे रेफरेंस के साथ जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो इनकी मौजूद है। फिर एक साल के ये पूरा एक साल जो है ना मैंने इनकी वीडियो लगातार मैं सुनता हूँ एवरी वीक। इस साल जब मैं आया हूँ ये लास्ट मंथ, इस मैं अपना माइंड बना के आया था कि मैंने इंशाल्लाह जाना है अकेडमी में, ज़रा फेस टू फेस पिक्चर भी बनानी है, साथ मुलाकात और लाइव सेशन भी अटेंड करना है। तो आज बस इसी वाले से फिर आज इधर आज फर्स्ट टाइम आए थे? फर्स्ट टाइम आए। हो गई मुलाकात अंदर? नहीं अभी जाना है मुलाकात। जाना है। कैसा आज अपना एक्सपीरियंस बयान करें? पहली दफ़ा आए हो, लोग तो इल्ज़ाम भी लगाते हैं, वो कहते हैं अपना बंदा है, फिर वो कहते हैं इसको तमीज़ भी नहीं है। क्या अपनी आंखों से आज क्या देखा अकेडमी का, कैसा माहौल? ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई टोकन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई जूतों के पैसे नहीं देने, कोई पार्किंग के आपने पार्किंग फीस नहीं देनी, बिल्कुल हर चीज़ फ्री है। तो इंशाल्लाह हम समोसा और चाय भी पी के जाएंगे जाते हुए, वो भी सुना हुआ है। पिक्चर बनवाते हैं फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाक। सलाम अलैकुम। क्या नाम है भैया? आसिम नाम है मेरा। आसिम। आसिम। आसिम भाई किधर से? मैं सियालकोट से, इन्हीं के साथ हूँ। सियालकोट से? जी जी। सियालकोट तो जो हमारे एक मुर्शिद होते हैं वहाँ, पता है आपको? मिस भाई साहब। नाम सुना मैं हाँ, जानता नहीं। उन्होंने ना सियालकोट वैसे ही हमारा कर दिया। आज वोटिंग हो जाए तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ज़्यादा निकल आएंगे। जी जी। मैं असल में ये मेरे भाई लोग आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, तो मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मैं सियालकोट मेरा गाँव है। अच्छा। तो अब मुझे बड़ा शौक था, मैं इनकी मैंने कब से देखी वीडियोस वगैरह ना। कब से देख रहे हो? मैं काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। मैं बहुत शकीन था इनका, मैंने कहा बस इनसे कहीं मीटअप करना है, तो अल्लाह की तरफ से निज़ाम बन गया तो मैं इनकी तरफ आ गया हूँ। नहीं शौकीन क्यों थे? शौकीन क्या, इनमें क्या खूबी थी? इनमें वीडियो मैंने देखी है, इनमें इनसे मैं काफ़ी चीज़ सीखा हूँ। ठीक है, नमाज वगैरह बोलते हैं मतलब चीज़ें सीखने के लिए, उनसे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है, अंडरस्टैंड की है, माशाल्लाह। और दूसरों को बताइए भाई ये चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको भी मैं सुनता रहूँ काफ़ी, और को भी इनको भी सुनता रहूँ। और भी तो इतने बड़े बड़े उलमा हैं, उनसे कुछ नहीं सीखा जरा? उनसे भी सीखे, सबसे जहाँ से चीज़ अच्छी मिलती है हमने सीखे है। अच्छा सीखे, ठीक है। तो बस इनसे वो था कि बस इनसे बस मुलाकात करनी है, तो बस आज अल्लाह की तरफ से आ गए हैं, यहाँ बैठे हैं। और सियालकोट से और इस्लामाबाद से तो 2 घंटे का रास्ता है, जब चाहो वर्दी आओ। नहीं वो तो देखो ना, बंदे के हर कोई काम वगैरह भी होते हैं आने के, तो स्पेशली टाइम निकाल के संडे को रिलैक्स होकर हम सुबह के 7 बजे निकले हैं और यहाँ पे आए हैं। हो गई मुलाकात? कैसा पाया? फर्स्ट टाइम आया आज? नहीं फर्स्ट टाइम। कैसा थी उस्ताद मोहतरम का रवैया, लहजा, गुफ्तगू, आज की ये पूरी मजलिस, पूरा सेशन कैसा रहा? बहुत पसंद आया मुझे, अच्छा लगा जी। अंदर गए उस्ताद मोहतरम? अभी जा रहे मिलने के लिए। जा मिल के आओ। क्या नाम है भैया? आगे सुलेमान भाई। किधर से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से? फैसलाबाद से क्या करने आए हैं? इंजीनियर साहब से मिलने हैं। इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? 2017 में देखी थी एक वीडियो फेसबुक पे ना, छोटा सा क्लिप देखा था। ठीक हो गया। तो
ये है कि घराना तो मेरा प्रॉपर बरेलवी था, पीओ के मरीज थे सारे, लेकिन वो मेरा कुछ रुझान नहीं था इस चीज़ों में ना। तो मैंने वो छोटा सा क्लिप फेसबुक पे देखा, तो वो नाम जाके कमेंट्स में पढ़ा, वो तारुफ थोड़ा सा हो गया। उसके बाद फिर मैं 2018 में जब घूमने पे गया, तो वो उधर जाके थोड़ा सा जारी बात बता, जब जाता है खाना कबाब वगैरह में, वो देखता है यार रफ़ाई जैन से माल पड़ते हैं, ऐसे करते हैं, सही है। तो थोड़ा सा आके फिर वापस जब आया तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की ना इस पर, ठीक है, वीडियोस देखना शुरू की मुख्तलिफ तरह की, तो वो फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। 2020 के बाद मैंने प्रॉपर यानी कि फॉलो करना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें देखनी। रिसर्च जब आपने रिसर्च करना शुरू की तो कैसा रिजल्ट था, क्या रिस्पांस मिल रहा था? सेम वही चीज़ थी ना जो हम शुरू से देखते आ रहे थे, हर जुम्मे को घर में महफिल होनी, वो पीरों के फज़ाइल बयान होने, वो सारी चीज़ें होनी, ठीक है। लेकिन जब वो सारी जब हदीस और कुरान की बातें सुनी जिनमें साथ, वो एक 360 होता था, वो टोटली चेंज है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक चीज़ है ना, जो चीज़ सही होती है वो खुद ही दिल को लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब देखते गए तहकीक करनी शुरू करते गए, ठीक है, फिर वो ऐसे सुना इस्लाम 360, वो रिसर्च करनी शुरू कर दी। फिर कुछ किताबें घर में पढ़ी थी ऑलरेडी, जैसे बुनियाद तालिबीन हो गया, हिस्त बहिस्त हो गई, ये वाली किताबें ऑलरेडी घर में थी जो हम छोटे होते से यानी किसी कहानी पढ़ते थे, ठीक है। वो जब वो रेफरेंसेस देखे, वो जाके फिर मैंने पेजेस सर्च कर लिए, जैसे वो बुनियाद तालिबीन का 524 नंबर पेज है, ठीक है, वो यानी जाके देखा, वो सारा सेम। जब वो सारी चीज़ें सामने आई आगे, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने हिदायत दे दी। अच्छा, हिदायत तो दे दी, ये बताए घर वालों का क्या स्टेटस है? उनको भी हिदायत तक पहुंचाया, उनके आगे दावत रखी, फैमिली में, दोस्तों में? बिल्कुल रखी है, वाला साहब के आगे रखी माशाल्लाह ने। उन्होंने तकरीबन अब 5 से 6 दफ़ा कुरान पाक का तर्जमा पढ़ लिया है, वो सारी चीज़ें अब समझते हैं। तो फिर तो क्लियर, एक दफ़ा पढ़ लिया तो क्लियर। लेकिन वो अभी थोड़ा सा वो नमाज रफ़ाई दैन से पढ़ना है, चले तो ये तो क्लियर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अंदर गए थे, मिला है? हाँ जी, मिला है। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज सलाम अलैकुम। क्या नाम भैया? हसीब नाम। हसीब, किधर से हो? मैं सरगोदा से। सरगोदा से, माशाल्लाह। क्या कर रहे थे पहले तो ये बताओ? मैं इंजीनियर साहब से मुतासिर था पिछले काफ़ी टाइम से, और उनसे ख्वाहिश भी थी उनसे मिलने की, तो इस वजह से हम लोग दोस्तों का ग्रुप बना के आए थे उनसे मिलने के लिए। मुतासर थे इंजीनियर साहब से? बिल्कुल मुतासर। वो क्यों मुतासर थे? उलमा को नहीं सुनते, उलमा तो मना करते हैं मुतासर नहीं होना। देखिए, जिस तरह सबको नेगेटिव उनका तारुफ हुआ, मुझे भी नेगेटिव तारुफ हुआ, लेकिन जो मेन उनकी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये थी कि उन्होंने हमें अहले बैत का तारुफ करवाया, जो कि हमारे मौलवियों ने हमें नहीं करवाया। हम तबलीग पे भी जाते हैं, लेकिन कभी मौला अली का नाम नहीं लिया, कभी अहले बैत का जिक्र तक नहीं सुना। तो वो अहले बैत का जो तारुफ है वो हमें अली भाई ने करवाया और मौलवियों ने नहीं करवाया। और हमें तो लगता था कि हम जो मुसलमान थे वो यानी कि जो हमारे गुजरे में हैं वो सब ठीक थे, उनमें गलतियाँ नहीं थी। लेकिन जब हमने खुद जब रिसर्च की, इनकी वजह से मैंने खुद कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, हदीसों पे गौर किया, तो फिर पता चला कि गलतियाँ हमें हैं और हमें किसी भी बाबे को या किसी भी बड़े आलिम को परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए, गलती हुई इधर है ना। जी जी बिल्कुल, हमने बाबों को सारा कुछ मान लिया, ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं कि घर वालों के आगे दावत रखी, वालिद साहब वालदा, ये इनके आगे भी दावत रखी? बिल्कुल क्या आया? दावत रखी। देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो नमाज है वो सुन्नत के मुताबिक की, अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा यदैन से नमाज शुरू की, दूसरों को भी दावत दी। आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आ रहा है, वो भी सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी अपनी जो बाकी मामलात हैं वो भी सुन्नत के मुताबिक कर लें। माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हो? जी, फर्स्ट टाइम आया। अंदर गए थे पिक्चर में? बिल्कुल मिला हूँ। क्या लगता है इंजीनियर साहब के इस तरह बैठ के लोगों से मिलना और दीन सिखाना, ये बड़े आलिम दीन जितने बड़े बड़े नाम हैं दीन के ठेकेदार, वो भी करते हैं ऐसे? देखिए, बिल्कुल नहीं करते। 2008 से सिलसिला चल रहा है और इनकी बहुत बड़ी मेहनत है, तकरीबन 16 साल हो चुके हैं, और अब जाके उनको उस मेहनत का फल मिला कि लोग उनके पास आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कोशिश है कि हर बार इधर आएँ। इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा एक बार आना, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर बार आऊँ। नहीं, बस दीन का काम करें, दीन का काम जहाँ तक भी रहेंगे इंशाल्लाह दीन का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? तैयब महमूद नाम है। तैयब महमूद, किधर से हो? आज़ाद कश्मीर कोट जामिल से। आज़ाद कश्मीर, क्या करने आए थे? ये इधर जो है दीन इस्लाम सीखने के लिए, ठीक है, अपनी इस्लाह के लिए। जो इंजीनियर साहब का इनका तारुफ जो हमें मिला था, वो आपको पता कि क्या मिला था? क्या तारुफ, क्या सुना था? कि अनकरीब ये नबूवत का दावा करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक है।
تو ان قریب یہ جو ہے نا کہ یہ فتنہ فساد پھیلائیں گے, ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اس کو نہیں سننا, اس کو نہیں سننا, اس کو سننا حرام ہے, حرام ہے, اس کو سننا حرام ہے, اس کو سننا ہی نہ. تو سنا آپ نے, ہاں ظاہری بات ہے, علماء کی بات نہیں مانتے نا آپ, علماء کی بات ماننی چاہیے. ظاہری آپ کی بات ٹھیک ہے کہ علماء کی بات ماننی چاہیے, لیکن یہ کہ ہم نے حق کو بھی تو دیکھنا ہے نا, ہم نے ریسرچ کرنی ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون نہیں ٹھیک. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. تو اچھا جی سنا, تو پھر کیا پایا, کیا پایا, کیسا لگا؟ ہم نے پایا کہ دیکھا کہ یہ ریفرنس مکمل ہے, بات بھی ہو رہی ہے, تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا لیکن وہ حق تسلیم نہیں کر رہے سامنے والے, وجہ کیا ہے؟ پھر ہم نے اور یعنی کہ کلوز ہوئے, ٹھیک ہے, اور کتابوں کو تھوڑا ڈیوٹی کیا کہ دیکھیں اندر کیا ہے, تو اندر کیا ہے, لیکن جب دیکھا تو واقعی یار سچ ہے جو کہہ رہے ہیں, وہ کتابوں کے ریلیٹڈ ہے بالکل, ٹھیک ہے. تو اس کے مقابل میں ہم نے ان کو جو ہے نا غلط پایا, علماء کو ظاہر ہے تھوڑا بہت غلط پایا, ٹھیک ہے. تو ظاہر جو واقعات ہیں, کہانی قصے ہیں, ظاہری بات ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیں پھر دماغ سے اوپر ہی ظاہر پہلے بھی گزرتے تھے, لیکن ایسے تو اس وجہ سے ہم نے ان کو جو ہے نا کر دیا, ٹھیک ہے. تو پھر اس وجہ سے آتے ہیں ادھر, انجینئر صاحب پہلی دفعہ ہی آیا ہوں, بہت اچھا جو ہے نا کیسا پروگرام کیسا تھا, بہت اچھا اہتمام تھا, ٹھیک ہے. اخلاقیات پورا اعتماد, ٹھیک ہے, پورا اخلاقیات. کہتے ہیں علماء کہتے ہیں بدتمیز ہے, تمیز بھی نہیں ہے, جہل ہے, کیا دیکھا آج؟ یہ نہیں, اہم علماء جو ہے نا اپنی ذرا انہوں نے یہی بیان کرنا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, یہ غلط ہے, صحیح ہے, اس کے یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کے یہ ٹھیک نہیں ہے, جو ہے انجینئر جو ہے جھوٹا پروپوگنڈا, جھوٹا صحیح ہے, فتنہ فساد ڈالے گا, یہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ظاہر اگر اپنی بات کریں کہ ہر انسان کو حق تسلیم کرنے کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. اندر گئے تھے, پکچر بنوایا, ابھی جا رہا ہوں ادھر. اوکے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی؟ عمر امتیاز. عمر امتیاز بھائی, کدھر سے ہو؟ میں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. اچھا جی, راولپنڈی سے کیا کرنے آئے تھے پہلے تو یہ بتائیں. کلاس کے لیے آیا تھا, کافی عرصے سے پلان کوشش کر رہا تھا, بس اللہ نے ابھی توفیق دی, انشاءاللہ حاضر ہو گیا ہوں. اچھا, انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا اور کب ہوا؟ بہت عرصہ پہلے ہوا تھا, تقریباً کوئی نیگیٹو. کیا سن لیا, کیا تھا اصل میں میرا بیک گراؤنڈ سے میں اہل حدیث ہوں, اہل حدیث فیملی سے ہوں, ٹھیک ہے. تو اہل حدیث سے بھی حدیث تو اتنا برا تو نہیں جاننا چاہیے. نہیں, بس ان میں یہ تھا کہ نیگیٹو تعارف اس طرح سے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے کئی بیچ میں اہل حدیثوں میں بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی دوسرے مکتبہ فکر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا, تو مجھے بھی اس طرح تعلق ہوا, اس ٹائم میری بھی مینٹلٹی وہی تھی. پھر بیچ میں گیپ آ گیا 6-7 مہینے کا, پھر میں اسکرولنگ کر رہا تھا فیس بک پہ, تو ایک ویڈیو چلی, وہ ایک کے بعد ایک, جب میں نے پراپرلی سننا شروع کیا تو مجھے لگا بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. جو فیملی ہے آپ کا, جو چونکہ ایک فرقہ آپ اہل حدیث سے بلانگ کرتے تھے, ان کا کیا اسٹیٹس ہے گھر والوں کا؟ ایکسیپٹ کرتے ہیں انجینئر کو, آپ کو نہیں کرتے؟ نہیں, اب کافی حد تک ہو چکے ہیں. جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ ساروں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, لیکن ان سے ہی میں نے انہیں ریسرچ پیپر 5 بھی پڑھایا. تو انہوں نے پڑھا, ود ریفرنس پڑھا, تو کہتے ہیں یار یہ تو کام ہوئے ہوئے ہیں ایسے, یہ تو لکھے ہوئے ہیں, اور یہ تو کراس چیک کرو تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی لکھے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ تھوڑے سے آگے ہوئے, لیکن ابھی ٹائم لگے گا انہیں. چلیں دعوت رکھیں. جی ہاں, جی الحمد للہ گیا تھا اندر, پکچر لیے. بہت شکریہ. ہو گیا نا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کیا نام ہے آپ کا؟ نور زمان. نور زمان, کدھر سے آیا؟ چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. چکوال, ہمارا ہمسایہ چکوال. جی, خیریت تھی, کیا کرنے آئے تھے؟ میں صرف جو ہے وہ انجینئر صاحب سے ملاقات کے لیے آیا تھا, ان کی صرف زیارت کے لیے آیا تھا. یہ جب سے ان کو سنا ہے نا, تو میں نے پہلی نشست کے اندر ہی ان کو سمجھ لیا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے. خطرناک ہے؟ خطرناک. اچھا اچھا اچھا. یہ بہت بڑا فساد برپا کرے گا. اللہ اکبر, فساد برپا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ تو نظر آ گیا ہے, بندہ تو فسادی ہے, تو اس نے فساد تو بندہ تو فسادی ہے. گڈ. اچھا اچھا, آپ کو یہ تو پتہ چل گیا تھا, لیکن وہ نیگیٹو سینس میں پتہ چل گیا تھا یا پازیٹیو سینس میں, یہ تو بتائیں. یہ پازیٹیو سینس. پازیٹیو سینس. پازیٹیو سینس, کیونکہ یہ چیزیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی, یہ بہت ساری چیزیں مجھے جو ہے وہ تقریباً 95% پہلے ہی پتہ تھی. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے مجھے ان کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو پھر مجھے بہت انجوائے کی ہے ان کی
वीडियोज़ को वीडियोज़ सुनकर को, हाँ, हाँ। और इनको समझ कर तो मैंने उसी वक्त ये महसूस कर लिया था कि ये बंदा जो है ना ये ज़रूर उम्मत की खिदमत करेगा माशाल्लाह। और इस वक्त क्योंकि नबी तो नहीं आ सकता ऐसे ही है, लेकिन नबूवत का काम यही बंदा करेगा और कर रहा है। जो जी चीज़ जी facts अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, अल्लाह ताला जो चीज़ फैक्ट्स हैं वो समझ आ रही है। बेशक इसमें तो ये कोई शक facts नहीं, हैं। इसमें कोई शक नहीं। उम्मत लेवल का काम है अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह ताला ने करवाया। उम्मत का काम यानी इस वक्त अगर बंदा कोई कर रहा है तो ये बंदा कर रहा है। अच्छा, आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम। कैसा प्रोग्राम था? प्रोग्राम बहुत बंदा अच्छा। कैसा था, रवैया कैसा था? हाँ, मुझे मेरा करना चाहिए। आपने पिक्चर बनाने जाना है? हाँ, पिक्चर या हो गया? मैं हो गई फिर जी जाए। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है भैया? सिकंदर मंजूर। सिकंदर भाई किधर से? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। फैसलाबाद से काफ़ी बंदे हैं, इकट्ठे आए हुए हैं? नहीं इकट्ठे नहीं, हम अच्छा। तो सुबह के निकले हुए हैं 3 बजे। और भी काफ़ी बंदे हैं जी। क्या करने आए थे? मैं सर मिलने ही आया था। किसको? इंजीनियर साहब को। अच्छा जी, होगी मुलाकात? होगी, बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह। और मेरा बड़ा दिल था, हम पिछले तकरीबन 1-2 हफ्ते से प्रोग्राम बना रहे थे जाने का। ठीक है, कल भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा नहीं चलते हैं, सुबह सुबह फिर निकल के आ गए हैं और बड़ा मज़ा आया। बड़े ही अच्छे। इनका जो तारुफ था सबसे पहले नेगेटिव हुआ था, पॉजिटिव हुआ था, कैसे सुना कैसे इनको? नेगेटिव हुआ था, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं था हुआ, नॉर्मल सा हुआ था। लेकिन ये है कि उसके बाद इनको सुनना शुरू किया है। तो पहले ये था कि मैं अब क्या बताऊँ आपको, काफ़ी नमाज़ें वगैरह छोड़ चुके थे, सब कुछ है कि वो कोई सीन नहीं था अभी। तो सुनने के बाद काफ़ी चीज़ें खुली हैं, काफ़ी राह खुले हैं, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। मैंने क्या मना नहीं किया उलमा ने, घर वालों ने कि इसको क्यों सुन रहा है? नहीं, किसी ने मना नहीं किया। दोस्तों ने एक दो ने किया है, उसके अलावा और किसी ने मुझे मना नहीं किया। घर वाले भी साथ दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप सुनो, कह रहे हो ठीक है सब कुछ। तो अब जब आप सुन रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आया कि ये बातें ठीक कर रहे हैं? बहुत सारी बातें तो दोस्तों को भी समझाया कि कोई नहीं समझाया? मैं समझा रहे हैं, वही दावत में लगे हुए हैं आजकल। एक साथ में आया है, एक नहीं आ सका, 1-2 हैं, उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि कायल करें किस तरह लेके आए यहाँ पे। और माशाल्लाह चलें, जिस तरह ये दीन का काम कर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाथ में पकड़। सलाम अलैकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? फैसल भाई किधर से? लाहौर से। लाहौर से? जी लाहौर। लाहौर कौन सा एरिया? लाहौर PCS से यार। अच्छा, खैरियत क्या करने आए थे पहले तो ये बता। अली भाई को मिलने आए थे, फर्स्ट टाइम नहीं आया मैं। आगे भी आए हुए हो? पहले भी आया हूँ। इनका तारुफ कैसे हुआ था? अली भाई का तारुफ हुआ था मुझे, मैंने इनकी वीडियोस देखने शुरू की थी 2015 से। 2015 से देखते फिर उनको क्यों देखी थी? उलमा तो मना करते हैं नहीं सुनना इसको। बस वो स्टार्ट में देखता था, छोड़ अच्छा, उस वक्त मना नहीं कर रहे थे? नहीं मना नहीं कर रहे थे। अच्छा ठीक हो गया। और कुछ भी पता भी नहीं था उनको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला, फिर तब्दीली आती रही। पहले जैसे बिदात में थे हम, जैसे ज़माना जिसे बरेलियत बोलते हैं, उसमें थे। दरबारों पे जाना, कुछ पहले भी अल्लाह का शुक्र है कि अकीदा ये नहीं था। क्वेश्चन ये है, 2015 में वो इतने फेमस भी नहीं थे जी, लोग इस तरह जानते भी नहीं थे। क्या नौबत आई सुनने की? कैसे पता चला कि यार ये बंदा बोल रहा है? मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा था, सडनली अली भाई की वीडियो सामने आ गई। ठीक है, तो मैंने वीडियो सुनते उसमें इन्होंने ये जो इनका सेशन है बाबों वाला, वो मैंने देखा। और उसके बाद दिमाग को ड्रिल की बात, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये हमारे तौहीद पे डाके डाले हैं इन्होंने सिवाय किस्सा कहानियों के कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ना ये डायरेक्ट कुरान पढ़ने देते थे, कहते जी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना। ना इन्होंने सुन्नत का बताना, सिर्फ बाबाइज़म को लेके चलते रहे और कुछ भी नहीं। कुरान हदीस की किताबें मौजूद होने के बावजूद इन बाबों को ज़रूरत ही नहीं थी अपनी किताबें लिखते। ये उन्हीं की तालीम जारी करते, बिल्कुल उन्हीं की तालीम देते और उसी की ताकीद करते, ना कि अपने नामों के कलमे पढ़ाते या दूसरे अपनी इबादत करवाते। जी, सही है, बेशक ऐसे ही। बुत परस्ती तो बहुत पहले थी, ये इन्होंने कब्र परस्ती पे ही जारी रखा सारा काम, जो कि अभी भी जारी है। अल्लाह सबको हिदायत दे। जैसे आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत मिल गई, आपको समझ आ गई, घर वालों को भी समझाया? जी 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 जी, दावत रखी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रखी। हाँ जी, समझे। क्योंकि अक्सर आप हमारे वालिद जो होते हैं ना, वो अड़ जाते हैं
नहीं 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 माशाल्लाह समझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बात है। समझे। जब उन्होंने कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया, यहाँ जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए इस आयत का ये तर्जमा है, इसका ये तर्जमा है, वो हक को कबूल कर रहे हैं जैसे कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी हक कबूल करने की। अंदर गए थे पिक्चर में वाक़या है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी आता रहता हूँ, आज फर्स्ट टाइम बस आपसे मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमास तालिब है। अमाज भाई किधर से हो? मैं आया हूँ ज़िला आज़ाद कश्मीर से, ज़िला बिम्बर। अमाज का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना। अच्छा अच्छा, आज़ाद कश्मीर से। जी जी। कैसे तारुफ हुआ इंजीनियर साहब का? इंजीनियर साहब का तारफ़ ज़्यादातर तो नेगेटिव आपको पता ही होता है। हाँ, क्या सुनना था? नेगेटिव भी सुना तो क्या सुना? फितना है, कज़ाब है, कादियानी, क्या था? ये समझे कि सारे वर्ड तकरीबन सब भी यूज़ हुए हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है ना, फिर एक जहन में आया कि यार रिसर्च भी करनी चाहिए, चलो फितना ही है तो चेक ही कर लेते हैं कैसा फितना है। कैसा फितना? चस्का दे लेना। सही है। वो चस्के दे चक्कर जी जड़ा ना देख लो जाते भी आ गए। अच्छा, नहीं क्या खूब, क्या इनकी क्या बात अच्छी लगी, क्या खूबी थी जो दिल मायल हुआ इस तरफ, क्या था? भी ये है कि सबसे पहली बात है जो ये फ़िरक़ों से जो है ना आटा है इनका, फ़िरक़ों से कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद जो सी बात करनी है वो रेफरेंस के साथ रेफरेंस करनी है। ये चीज़ बहुत पसंद आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर गए थे, मिल के आए? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या लगता है कोई और भी आलम दीन, कोई जिस तरह बड़े बड़े आलम दीन है उनको भी मिलना इतना ही आसान है जिस तरह ये धीरे बैठ के आराम से लोगों को मिल रहा है, खिला रहा है, दीन सिखा रहा है? वो तो पैसे खाने में लगे हुए हैं जनाब, चंदे शिंदे दे तो पैसे बटोरो बस। क्या समझते? बहुत शुक्रिया। हाय सर, क्या नाम है? जाहिद नाम है। जाहिद साहब किधर से आए हैं? मैं साउथ अफ्रीका से आया हूँ। पाकिस्तान से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह? लाहौर फतेहगढ़ से। फतेहगढ़ से, मुगलपुरा के साथ। सही हो गया। खैरियत थी? पहले ये बताएं करने क्या है इधर? इधर मैं अली भाई को मिलने आया था। कैसे तारुफ हुआ अली भाई का? एक्चुअली इनका तारुफ मेरी सिस्टर ने मुझे तारुफ करवाया इनका। क्या हुआ तो कहा? नेगेटिव भी था। अच्छा, क्या कहती थी? वो कहती थी कि इनको सुने ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। नहीं, नेगेटिव आप कह रहे हुआ था? हाँ, मैंने जब बाबू के सुना कि ये कहते हैं कि बाबे शायद कोई नहीं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। तो फिर मैंने जब सुना इनको मजलिस 100 मैंने सुनी। आप क्या कहते थे? बाबे शाह हैं? एक्चुअली भी बाबी थे ज़्यादा पहले उस वक्त वही थे कुछ थे। तो फिर जब सुना तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने हिदायत दी। अच्छा, नहीं हिदायत तो अल्लाह ताला ने दे दी। क्या सुना, कौन सा क्लिप सुना जो वाकई आपको लगा कि नहीं यार वाकई हम गलती पे थे, बंदा तो ये ठीक है? ये जो नारा ना इनका बाबू का खुदा और है किताबों का जी जी जी, ये इसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। ठीक हो वजह से मैं ना पढ़ने कुरान पढ़ने पर मजबूर हुआ। हाँ। फिर मैंने अली भाई के कहने पे मौलाना मुफ्ती साहब का कुरान पढ़ा। अब देखें, अल्लाह माफ़ करे, एक ही बंदा है वो ये सोचता है कि भी मुझे इस नारे ने बड़ा मुतासर किया। एक और बंदा है वो कहता है जी वो मैं तो इस नारे से ये सुना कि 2 खुदा हैं। देखिए अपनी मर्जी समझने की बात। वो कहता है किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और बंदा कहता है वो मेरे बाप मेरे साथ लड़ पड़ा है, इसके तो 2 खुदा हैं। देखिए बस समझने की बात है ना, बस वो तो उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा तर्जुमा और तफसीर के साथ, तो सारा साफ हो गया, पता चल गया सारा। तो अभी मैं अपने बेटे को भी इसीलिए लेके आया था। क्या नाम बच्चे? हुसनैन। जानते हो इंजीनियर साहब को? सुनते हो? हाँ जी सुनता हूँ। क्या क्या सुना है? अच्छा बुरा जानते हो? क्या जानते हो? अच्छा जानते हो उनके बारे में। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी फर्स्ट टाइम आया। आप खुद देखते थे, पापा के साथ देखते थे या अपनी मर्जी से देखते थे? मैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से, अच्छा, आपको क्या लगता है आजकल की यंग जनरेशन भी इंजीनियर साहब को जिस तरह सुन रही है? जी जी। और यंग जनरेशन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा जो भी नया बंदा, आप बच्चे देख लें, इधर देख लें जी, उलमा को तो उस तरह से लोग अब सुनना छोड़ गए। क्या वजह ये है कि लोगों को एक्चुअली हक पता चल गया कि कैसे हक क्या है। पहले सब कहानियाँ थी जो सुनाते थे वो लोग मुतासर थे। जैसे हिंदू लोग उन्होंने अपने देवताओं देवताओं के बारे में कहानियाँ मशहूर की हैं, इस तरह ये कहानियाँ थी। जबकि लोगों को साफ पता चल रहा है कि हकीकत क्या है, लोग दिन की तरफ आ रहे हैं। दिन की तरफ आ रहे हैं। अंदर गए थे पिक्चर बनवा के? जी जी। अच्छा, बताया था कि आप साउथ अफ्रीका से आए? बताया। कोई मुट्ठी छुट्टी भी गर्म की? कोई नहीं? नहीं, वो इस तरह के नहीं है, कुछ नहीं लेते। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।